کتنا کماتے ہو؟ بازان نے سرد لہجے میں آبرو اچکا کے بولا تو سامنے بیٹھا وہ شخص پہلے تو سٹ پٹایا۔ مطلب یہ کہ کتنا حرام کھاتے ہو؟ عمران نے اسی کندھے پہ کندھا مارتے دوستانہ لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرائی۔ کچھ 7-8 لاکھ، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ وہاں موجود لڑکوں اور ان کے درمیان میں بیٹھی لڑکی نے پرسرار سا کہکا لگایا۔ وہ لڑکا جو پولیس میں کام کرتا تھا ان کو دیکھ وہ بھی ہنسنے لگا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ افریدی کے گھر رشتہ لے کر آنے کی وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ کب سے جانتے ہو ہمیں؟ داہی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بازان بس چپ چاپ اس پولیس والے کو دیکھ رہا تھا جو بظاہر تو رشتہ لینے آیا تھا لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ وہ لڑکی اپنے بھائی کے حارس سے نکلتی اس کی طرف بڑھی۔ بلیک جینز شرٹ پر براؤن کمر سے نیچے آتے بال جس سے اس نے کرل کر کے کندھوں پر ڈالا ہوا تھا، گرے آنکھوں کو گلاسز کے پیچھے چھپائے وہ ہائی ہیل پہنے کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سب ایک سی ڈریسنگ کیے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا اس کو اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی نظروں کو قابو میں رکھو پولیس والے۔ داہی کی برداشت ختم ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں انگلیاں دیتے وہ زور سے دھاڑا۔ بھلا کہاں برداشت تھی اپنی گڑیا پہ کسی کی بری نظر بھی؟ وہ پولیس والا ڈر سے چیختا کرسی سے نیچے گرا۔ وہاں موجود سب نے غصے سے اسے دیکھا جیسے ابھی زندہ درگور کر دیں گے۔ وہ چلتی اس تک پہنچی، ہاتھ اپنی کمر پہ لے جاتے اس نے اپنی گن نکالتے اس پہ تانی۔ اس پولیس والے نے بامشکل اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا تو اسے سامنے کھڑی لڑکی میں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ سب نے دلچسپی سے اسے دیکھا کہ اب کیا کرنے والی ہے۔ بہت درد ہو رہا ہے نا؟ زمین پہ ایک گھٹنا رکھ کر اس پہ جھکی گن اس کے سر پر رکھتی یک فکرمند لہجے میں بولی تو اس لڑکے نے ثابت میں سر ہلایا۔ اس چھوٹے سے مکے سے تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے؟ درد سے ابھی واقف ہی کہاں ہو تم؟ لیکن تم فکر مت کرنا، اب میں اتنی بھی ظالم نہیں جو تمہیں درد سے آشنا کیے بغیر اوپر پہنچا دوں۔ وہ گن اس کے منہ کے اندر گھساتے ٹریگر پر دباؤ بڑھانے لگی۔ پولیس والا خوف سے اس کی پیشانی میں پسینہ آ گیا۔ باقاعدہ وہ کانپنے لگا۔ جو تم ابھی محسوس کر رہے ہو اسے خوف کہتے ہیں، وہی خوف جو مظلوم لڑکیاں خود پر ہوئے ظلم کے لیے تمہارے پاس رپورٹ درج کروانے آتی ہیں اور بغیرت زمین کا بوجھ انہی جسم فروشی کا کہتے ہو۔ گن نکال کر اس نے تیش میں غرغاتے اس کے ٹانگ پر فائر کیا۔ پلیز معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ درد سے بلبلاتا معافیا منتوں پہ اتر آیا۔ گرے آنکھیں لال ہوئیں، سب ہی اس کا دردناک انجام دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ کب اس کی روح پرواز ہو اور کب وہ چین کی سانس لے۔ آئندہ کے لیے تم بچو گے تب ایسا کچھ کرو گے نا؟ دانی نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ جب ان لڑکیوں نے تم سے کہا ہوگا کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، تو کیا تم نے کیا؟ نہیں نا؟ تو ہم تو ہیں ہی جلاد، بے رحم۔ کیسے کریں تمہیں معاف؟ ہاں کیسے؟ داہی نے ایک گولی اس کے پیٹ میں ماری۔ وہی گرے آنکھوں والی کا زوردار پنچ اس کے منہ پر پڑا۔ خون کا فورا اس پولیس والے کے منہ سے نکلا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ درد سے چیختا چلاتا سر ادھر ادھر مارنے لگا۔ یہ جو اب محسوس ہو رہا ہے تمہیں یہاں اس کے کندھے پہ جہاں گولی لگی تھی، اسی جگہ پہ ہیل رکھتی وہ دباؤ بڑھاتی بولی، اسے درد کہتے ہیں۔ اس کے درد سے تڑپنے پہ وہ زہر خند لہجے میں بولی، چلو بہت ہو گیا درد۔ اب بتاؤ کس کے کہنے پہ اس گھر میں قدم رکھنے کی ہمت کر لی اور اتنی دلیری کے رشتہ بھی مانگ لیا؟ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ تمہیں گفٹ دینا، رائٹ بچہ؟ بادزان نے اس کی نازک سے سرخ ہاتھوں سے گن لیتے کہا تو پولیس والے کے دل میں امید جاگی کہ شاید وہ اسے بخش دے، لیکن اب ایسا کہاں ممکن تھا۔ اب بتا بھی دے، کیا انویٹیشن کارڈ لے گا ہم سے؟ دانی نے منہ بناتے بوریت سے کہا۔ سعید نے بھی گرے آنکھوں والی کو دیکھا۔ وہ بازان کے پیچھے سے نکلی، اس کی پاکٹ سے اس کی گن نکالتے ایک کے بعد ایک فائر پولیس والے پہ کھول گئی۔ سفید چمچماتا فرش پر خون کئی مقدار میں پھیل گیا۔ دانی اور سعید کے چہرے چمکے، وہیں بازان، داہی اور عمران نے ان دونوں کو گھورا کہ کیا جاتا جو تم منہ نہ بناتے۔
یہ کس کا پالتو کتا تھا اور کون تھا، یہ اب کیسے پتا چلے گا؟ ابرار نے بازان کو دیکھا جو غور سے اپنی گڑیا کی حرکت دیکھ رہا تھا، جو اس پولیس والے کا موبائل اور پاسپورٹ کے ساتھ اور بھی سامان نکال رہی تھی۔ مائیکل نام ہے اس کا، اور یہ پاک کا نہیں، اٹلی کا رہنے والا ہے، اٹالین مافیا کا بندہ ہے۔ ہاتھ جھاڑ کر اٹھتے وہ ان کو بتانے لگی، اس بات سے یہ تو ظاہر ہے حرب تمہاری اس کی لڑائی میں وہ فیملی کو لا رہا ہے۔ بازان نے حرب سے کہا تو گرے آنکھوں میں سوالی انداز میں اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کون سی لڑائی اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بچہ چلو اب رکھو گن ہاتھ، دیکھو کیسے سرخ ہو رہے ہیں۔ بازیان نے بات بدلتے اس کے ہاتھ سے گن لیتے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتی حرب کے روم میں گھسی۔ جی تو یہ تھے ہمارے افرینڈز اور ان کی منتوں مرادوں سے مانگی بہن، سب سے بڑا ان کا لیڈر بازان، جو بندے کو ایک نظر میں ہی اس کے اندر تک ساری تفصیلات جان لیتا تھا۔ عالم اور صارف، جو لندن میں اپنی گڑیا کے دیے کاموں کی وجہ سے مصروف تھے، داہی دانی تھے تو جڑوا، لیکن مزاج دونوں کے مختلف تھے۔ جہاں داہی غصے کا تیز بے رحم، وہیں دانی شرارتی خوش مزاج، لیکن بات جب ان کی گڑیا پر آتی تو وہ سب تہہ نحس کر دیتے تھے۔ سائد، جو کہ ایک انجینئر تھا، سخت مزاج، سڑیل کہنا بہتر ہوگا، نومی، جو زیادہ تر اپنی گڑیا کو کمپنی دیتا تھا، یا یوں کہہ لیں لوگوں کو مارنے کی ٹریکس سکھاتا تھا تاکہ سب کو اینڈ ٹائم پہ جھٹکا دے سکے۔ ابرار، وہ تو بالکل پاگل تھا، اپنی گڑیا کے لیے اس کی تکلیف پہ وہ دنیا کو آگ لگا دے، اتنا خطرناک اس کا غصہ تھا۔ اور ان کی گڑیا بڑے مزے سے بیٹھ کر ان کی باتیں اور ان کا غصہ دیکھا کرتی تھی۔ اور سب سے آخری ہماری سنگ دل کو بھانے والی آواز سے اپنی لیے تعریفیں بٹورتے شان افرین تھی، جس میں ایک اس کی پارٹنر اس کی گڑیا تھی، جس کی آواز کے لوگ دیوانے تھے۔ ماں باپ کی طرح پالا تھا ان 9 بھائیوں نے اپنی بہن کو، وہ اسے دنیا کی ہر آزائش دینا چاہتے تھے، چھوٹی تکلیف بھی کبھی اسے ہونے نہ دی تھی، ہر وقت اس کی ڈھال بن جاتے تھے۔ لاکھ وہ نازک تھی، لیکن قسمت کا کیا پتہ وہ اس کی یہ نازکی ختم کر دے یا ہمیشہ ہی برقرار رکھے۔ نہ پیشگی ہوگی نہ گواہ ہوگا، اب جو بھی ہم سے اڑے گا تباہ ہوگا۔ باس، ہمارے آدمی کو مار دیا ان لوگوں نے۔ روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں وہ موٹے گینڈے نما وہ شخص حرب کو مشروب کو اپنے گلے سے اتارتے سامنے کھڑے خوف سے کپکپاتے گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر گارڈ فر فر بولنے لگا، حرام خورو، تم 2 ٹکے کے لوگوں کو میں نے اس لیے نہیں پالا کہ میرے دشمنوں کے ہاتھوں مرو، بلکہ اس لیے پالا ہے کہ ان کی کٹی گردنیں میرے سامنے لاؤ۔ ہاتھ میں پکڑی کانچ کی بوتل اس گارڈ کے سر پر دے ماری۔ وہ گارڈ درد سے کڑھا بھی نہ سکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ نشے میں دھت چلا کر بولا تو گارڈ زخمی سر پہ ہاتھ رکھتے باہر بھاگا، کہیں وہ سنکی بڈھا پھر نہ اسے بلا لے۔ کہاں ہو تم؟ اس نے کسی کو کان ملاتے وہ نہایتی پیار محبت سے پوچھا۔ اف ڈیڈ، ٹھیک ہوں، میں ہر وقت یہی سوال کیوں؟ بازاریت سے جواب دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ مسکرایا۔ بیر ملک، کب آنا ہے واپس اٹلی؟ اپنے لہجے کو نارمل رکھے وہ اسے محسوس نہیں ہونا دیتا تھا کہ وہ ڈرنک ہے۔ جب دل کیا آ جاؤں گا، لیکن آج میں پاکستان جاؤں گا، میری فرینڈ کی شادی ہے، وہ سنجیدگی سے بتانے لگا۔ بٹ یہاں آنا زیادہ ضروری ہے، شادی پہ نہ جاؤ گے تو بھی اس کی شادی ہو ہی جانی ہے۔ ان کے لہجے میں سختی آئی۔ پلیز ڈیڈ، ابھی موڈ نہیں ہے میرا کام کرنے کا، یار کچھ منتھ بعد کر لوں گا جوائن۔ بیئر بیزاری سے بولا، کیونکہ اس وقت وہ ایئرپورٹ پر تھا، اوپر سے ملک کی کال، وہ چڑچڑا ہوا۔ بس 1 سال، اس کے بعد تم چاہو نہ چاہو تمہیں آفس آنا ہی ہوگا، اوکے بائے، کہتے وہ کال کٹ کر گیا۔ سر، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، پیچھے سے گارڈ نے اطلاع کی تو وہ ایئرپلین کی طرف بڑھا۔ سفید پیشانی پہ بکھرے براؤن بال، نیلی آنکھوں پہ گلاسز لگائے، انابی لبوں کو بھیجے بلو پینٹ، وائٹ شرٹ، ہاتھوں میں بلو کوٹ لیے وہ اکڑ کر چلتا سب کی نظروں کا مسکر تھا۔ سب کی توجہ اپنی طرف پا کر اس کی پیشانی پر بل آئی جو اسے اور وجیہ بنا گئے۔ لڑکیوں کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کا اپنا جیٹ بھی تھا، لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے اسے ایئرپلین سے جانا پڑ رہا تھا۔
कांच के बने इस रूम में हर बड़ी से छोटी चीज कांच की थी। नफासत से सेट किए रूम में सिर्फ चंद चीजें मौजूद थीं। जहाजी सा बेड, दीवार में नस्ब किया गया शीशा, एक तरफ खूबसूरत डिजाइन में बने रैक में गिटार, इसी के साथ एक बटन मौजूद था जिसे जिसे दबाने से तीन दरवाजे नुमा होते थे। वॉशरूम, चेंजिंग रूम और एक रूम जिसमें इसके पसंदीदा आलात मौजूद थे, जैसे गन्स, राइफल, चाकू। वो लेफ्ट से निकलती सीधा लाइब्रेरी में इंटर हुई। जितना मर्जी ये छुपा ले, लेकिन मैं भी इन्हीं की बहन हूँ, सब जानकर ही रहूंगी। वो बुड़बुड़ाई और लैपटॉप पे उंगलियां चलाने लगी। एक जगह वो रुकी। वो एक वीडियो क्लिप थी जो हरब को ईमेल की गई थी। उसने वीडियो पर क्लिक किया। मुझे मालूम है तुम भाई बहुत होशियार हो। ये तुम्हें याद करवाने के लिए भेजा गया था ताकि तुम भूल न जाओ इस मलक को। वापस आया हूँ मैं। इस बार तुम्हारे खानदान के हर फर्द को तड़पा तड़पा के मारूंगा, और तुम्हारी वो चहीती बहन, इसको तो मैं अपनी रखेल। वीडियो चलते ही सोफे पर बैठा एक गेंडा नजर आया। चुनाचा लाइट आइन उसके सर के ऊपर लगी थी, इसीलिए इसका चेहरा देखने से नदीदा था। आधी वीडियो जब्त से सुनते इसकी ग्रे आंखें शोला बरसाने को तैयार थीं। अगर ये वीडियो इसके भाई देख लेते तो न जाने तैश में आते क्या कर बैठते। तुम्हारा कहा पूरा करूंगी। पुरसरार सा लहजा था इसका, न जाने अब क्या करने का इरादा रखती थी वो। इसने वीडियो डिलीट करती लैपटॉप साइड पे रखा और फ्रेश होने चल दी। ये वही अफरीन्स हैं जिनकी फैमिली की लड़की अपना चेहरा ढांप के रखती है। पाकिस्तान पहुंचती वो सीधा इस्लामाबाद आया था। कार अफरीन्स हाउस से गुजरी तो वो सोचने लगा, एक घर छोड़कर ही इसके दोस्त का घर था। गार्ड्स ने दरवाजा खोला तो वो ब्लैक चमचमाते ब्रांडेड शूज जमीन पर रखते कार से निकला। मगरूराना चाल चलते वो अंदर की तरफ बढ़ा। गार्ड्स हमेशा की तरह इसके इर्द गिर्द फैले हाथों में गन लिए इसकी हिफाजत कर रहे थे। बियर आ गए तुम। हारिस इसको जोर से गले लगाया तो वो अपने थोड़ी पे पड़ते डंपर का दीदार करवाने लगा। सब अपना काम छोड़ छाड़ कर उससे देखने लगे जैसे इससे ज्यादा जरूरी कोई काम ही ना हो। चलो आ जाओ। ओ यार, तो यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इन गार्ड्स को पीछे करो। बियर के बदलते तासर देख वो जल्दी से बोला और उसे लेके दूसरे फ्लोर पे आया। थैंक्स यार, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगे, लेकिन पहली बार तुमने मेरे उम्मीदों पे पानी फेर के मेरा दिल को ठंड पहुंचा दी। वो तश्कर अमेज लहजे में बोला तो बियर हंसा। आग लगाने के लिए भाभी काफी होंगी। वो शरारत से गोया हुआ तो हारिस ने कहका लगाया, कहाँ है हमारी भाभी? यही एक घर छोड़कर। जानू नाम से कॉल आती देख वो बेध्यानी में अफरीदी हाउस का नाम बोल गया। बेयर ने सर हिलाया। जा जाकर कर ले बात, भाभी की याद आ रही होगी। वो इसके कंधे पे कंधा थपथपाते बोला, तू फ्रेश हो जा, मैं खाना भिजवाता हूँ। हारिस ने कहा और रूम से निकल गया। वो अपनी ड्रेस लेता वॉशरूम में घुसा। कुछ ही देर में वो वापस आते बेड पे आराम की हद से लेट गया। बाबा चले ना, चलते हैं। वो कब से इन्हें मना रहा था, लेकिन वैदान शाह मानने को तैयार ही ना थे। क्या करना है वहां जाके, वो जानते हुए भी सवाल कर गए। जियान का हंसता चेहरा कुछ ही सेकंड में मुरझा सा गया। कुछ नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, वो संजीदगी से बोलते जाने लगा। कल चलेंगे अफरीदी मिशन। मिसेस वैदान अंदर आते बोली तो वो खुशी से इनको गले लगाता बाहर निकल गया। आप जानती हैं ये गलत है। वो वहाँ बस उस बच्ची को देखने जाता है, और हमें ये अच्छे से मालूम है कि वो कभी भी अपनी फूल जैसी गुड़िया को हमारे पागल बेटे को देंगे। वो संजीदा तासुर से बोले, जो मर्जी हो, लेकिन मैं अपने बेटे को दास नहीं देख सकती। वो सर झटकते बोली और रूम से निकली। वैदान शाह नफी में सर हिला गए। बहुत बुरा कर रहे हैं आप, बजाय उसे रोकने के आप इसके पागलपन को मजीद बढ़ावा दे रही हैं। वो अफसोस से बोले। ये थी वैदान शाह की फैमिली को अफवादीन ने बेस्ट फ्रेंड थे। वो अक्सर अफरीदी हाउस
जाया करते थे। इनका बेटा सेफ्टी, जो ग्रे आंखों को देखते ही इसका दीवाना हुआ था, इसकी आवाज़ सुनकर वो बिन पिए ही मदहोश होने लगा था। मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखता रहता था। कई बार वजदान शाह ने उसे डांटा था, लेकिन इसकी आगे से यही बात होती थी, एक ही बार मरने दें, वरना आगे वो मेरी पसंदीदा चीज़ मेरे पास नहीं हुई तो या तो वो टूट जाएगी या मैं उसको किसी और के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इसकी बात समझते वरदान शाह का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल लाल कर गया था। इनको इनफैक्ट पूरी दुनिया के सामने अफरीदी बहुत डिसेंट थे, और सिवाय इनके एरिया के अजीब सी वहशत महसूस करते थे। वो लोग सब ने बस अफरीदी की बहन है ये सुना था, देखा भी था तो सिर्फ इसकी ग्रे आंखें, क्योंकि वो पूरी की पूरी छुपी हुई होती थी। इसका नाम भी आज तक किसी को पता ना चल सका। लेकिन एक बात थी, वो सब हमेशा एक सी ड्रेसिंग किया करते थे, अच्छों के साथ मीठे रसगुल्ले की तरह घुल मिल जाते, और टेढ़े लोग पहले तो इनके करीब आने से डरते थे। अगर कोई आ भी जाता गलती से तो ये इनकी खूब मेहमान नवाजी करके इन्हें भेजते थे। आशी मेरी जान कैसी हैं आप? वो इसकी कमर में बाजू हायल करते खुद से लगा गया। आशी ने मुंह बनाते उसे देखा, जैसे देख बज़दान ने मुस्कुराहट दबाई। पीछे हो जाएं बाजी, आप खुद जो मर्जी करते हैं करें, लेकिन यूं मेरी गुड़िया की जान खतरे में डालना कोई मुनासिब बात है भला? वो गुस्से से नत्थे फुलाए इसके हाथ हटाती जाने लगी। बादल ने इसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो अचानक हुई आफत पर संभल ना सकी और इसके कंधे पर हाथ रखती इसके सीने का हिस्सा आप बनी। इतनी नाराजगी अच्छी हुआ नहीं करती जानब। गुड़िया की फिक्र है और इसके भाई की नहीं। हमें भी अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लें। आपको ज़रा भी तंग नहीं करूँगा। भारी गंभीर मैनी खेजी लहजे में की गई सरगोशी इसके चेहरे पर फैले गुलाल की वजह बनी। वो शर्म व हया से पलके गुलाबी गालों पे झुका गई। बादल ने गहरी मुस्कुराहट लिए इसके चेहरे पर आई चंद आवारा लट्टों को कान के पीछे किया। इसके लफ्ज़ पर आशी की धड़कनें मुंतशिर हुई। इसका दिल बाजी के सीने में धड़क धड़ पागल हो रहा था। चांदनी रात में वाइट शलवार कमीज में बालों को खुला छोड़े वो इसकी बाहों में थी। वो मदहोशी के आलम में इसके गुलाब की पत्तियों जैसे होंठों पे अपने लब रखते इसमें गुम होने लगा। रूम में मैंने खेज सी खामोशी छा गई। इसकी तंग सांसों को महसूस करते वो नरमी से पीछे होते उसे अपने सीने में भेज गया। वो ढोल की तरह जोरदार आवाज में धड़कते दिल पे हाथ रखती आंखें बंद किए इसके सीने से लगी लंबी लंबी सांसें भरने लगी। रिलैक्स जानम। इसकी तेज से तेज होती धड़कन को अपने सीने में महसूस करते वो इसके बाल सहलाते बोला। आशी इससे दूर होती भाग के वॉशरूम में बंद हुई। बादल ने इसकी हालत पे कहका लगाया। इसकी कुर्बत में इसका यही हाल हुआ करता था। उफ अल्लाह जी, 2 साल हो गए हमारी शादी को, अब तो इस दिल को चाहिए सब समझ जाए। वो शर्मा कर कह दी, अपने दिल को डांटने लगी। जानब ये दिल मेरा है, मेरा दिल पागल है और पागल कभी कुछ समझा नहीं करते। आप मेरे करीब आकर लगाएं इसकी शिकायत। मैं इसको अपने तरीके से बता दूंगा। ओके। बाहर से बाजान की जज्बात से भरपूर दिलकश आवाज पर इसका दिल फिर से धड़कने लगा। बाजी ना करे ना प्लीज। वो तेज होते तनस्सुफ से रुक कर बोली, अच्छा बाबा जा रहा हूँ। बाजान हंसते हुए कहा और रूम से बाहर निकला। इसके निकलती वो वॉशरूम से निकली और बेड पर औंधे मुंह लेटी। अगले दिन शाह फैमिली अफरीदी फैशन में मौजूद थी। सेफ्टी इधर उधर नजरें दौड़ाते इस हसीन ग्रे आंखों को ढूंढ रहा था जो ना जाने कहाँ छुपी बैठी थी। वहदान शाह ने मुठ्ठियां भेजी। आशी ने सैफी को देखा। सैफी भाई किसको ढूंढ रहे हैं? वो थोड़ा तेज लहजे में पूछने लगी। सैफी बुखला गया क्योंकि घर देख रहा था। सैफी हड़बड़ा कर बोला। आशी ने गुस्से से उसे घूरा। मजान सईद ब्रार हरब और दाही वो सब वही मौजूद थे। बेटा बेरा नजर नहीं आ रही? बेटे की बढ़ती बेचैनी मिसेज वजदान ने बाजान से पूछा। गुड़िया को शान और नोमी साथ लेकर गए हैं। आशी ने संजीदा से नजर सैफी पर डाली जिसने इसके ना होने का सुन उदास चेहरा बनाया। अच्छा अभी वो कुछ और बोलती कि एक सुरीली सी उदासी से भरपूर आवाज ने इस सब की तवज्जो अपनी जानिब खींची। वो सब उठते लॉन में आए जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी। आस पड़ोस के अफराद भी टेरेस पे
पे बैठे इसे सुर बखेरते देख रहे थे। जो ग्रे आंखों पे पर्दा गिराए, चेहरे को मास्क से कवर किया, हाथ में पकड़ा माइक, इसकी दिल सोज आवाज के शहर में सब खुद को झगड़ा महसूस कर रहे थे। वो कब से सोने की कोशिश में लगा था, लेकिन नींद ने शायद आज इससे बेर रख लिया था। आज पूरा दिन कभी हारिस ने उसे माल में घुमाया था, अब वो थक हारा तो नींद नहीं आ रही थी। वो गुस्से से पहलू पटकता टेरेस पे आया, जहाँ से नीचे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वो मुड़ने लगा, लेकिन इस दिल नशीन आवाज में इसके कदम जगड़े। ये मुमकिन तो नहीं कि जो दिल ने चाहा वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करें। बियर ने सामने की तरफ नीचे देखा, जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ मास्क वाली लड़की को गाता देख वो वहीं लगे झूले पर बैठा। जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं, वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं। कभी जो हम सफर थे अब वही अनजान लगते हैं, मोहब्बतों के वो रिश्ते भी क्यों बेजान लगते हैं। खुशी के दर पे दस्तक दे रहे हैं हम मुसाफिर, लेकिन कहीं राह छीन पाए तो क्या करें। किसी से हम नवाई का सिला हमको ना मिल पाए, हुए जो बदगुमान हम तो क्या करें। ये तो नहीं जो दिल ने चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करें। ऐसा ऐसा इसके सुर का दर्द कम हुआ और वो झूले पर बैठे बैठे सुकून की नींद ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। आप बहुत अच्छा गाती हैं बेहरा, सैफी ने दिल पर हाथ रखते कहा। इसको देख बेहरा ने ग्रे आंखें घुमाई और माइक रखती शान के पास पहुंची, जो इसकी आवाज रिकॉर्ड कर चुका था। गुड़िया, यू आर द बेस्ट सिंगर। वो इसके हाथ चूमते बोला, इसके लहजे में बस प्यार ही प्यार था। थैंक्स भाई, वो ऐसा से बोली। आगे बढ़ी वजदान शाह और मिसेस वजदान से मिली। सैफी ने हाथ बढ़ाया, जिसे वो नजरअंदाज करते बाजान के पास पहुंची। आए यहीं बैठते हैं, मौसम काफी अच्छा है। दाही ने वहीं बैठी लकड़ी की चेयर की तरफ इशारा करते कहा, और वो सब वहीं बैठे। आंटी, आपको कुछ कहना था ना, अब कहें। हाँ बेटा, मैं सोच रही थी अब तुम्हारा कोई सरबराह तो है नहीं और बेरा भी शादी के लायक हो गई है। मिसेस वजदान की बात सुन इन भाइयों की आंखों में मिर्ची सी लगी। गुस्से से दानी कुछ बोलता कि बाजार के इशारे पे चुप साध ली। मेरी कोई बेटी भी नहीं है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बेहरा मेरी बहू बने। वो इनकी तरफ देखे बगैर मुस्कुरा कर बोली, जो अगर इनके तासत देख लेती तो हरगिज ये बात ना करती। ग्रे आंखें पहले तो हैरत से खुली, फिर इनमें गुस्सा आया। मेहरबानी जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा, मगर इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और रही बात आपके इस बेटी की, तो आइंदा अगर मेरी बहन कि क्या इस इलाके में भी नजर आए तो वही जिंदा गाड़ दूंगा, समझे। इमरान ने गुस्से से चिल्लाते कहा। इसका बस नहीं चल रहा था, वो सैफी को जिंदा दरगोर कर देता। तुम बदतमीजी कर रहे हो लड़के। वो गुस्से से खड़ी हुई। वजदान शाह इस सब में खामोश खड़े। अंकल, मैं अपने घर में कोई बदमजगी नहीं चाहता। सो बाजार ने वजदान शाह से कहा, तो वो सर हिलाते मिसेस वजदान को लेकर जाने लगे। सैफी तो इतनी बेइज्जती पे पहले ही जा चुका था। सुनो लड़की, जो तुम मेरे बेटे की ना हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगी, वो मूर्ति जहरखान लहजे में बोली। इसने चैलेंजिंग अंदाज में अबू ने उचकाया। कर ले जो करना है, लेकिन फिर हम भी हर लिहाज को भूलते। आपको आपकी अपनी ही चाल में बेदर्दी से न फंसाया तो हम भी अफरीदी नहीं। हरब वहीं खड़े जोर से धारा तो मिसेस वजदान कांपती वहां से निकली। सुनो ना, इस माइक से हम किसी को भी मार सकते हैं, है ना। मतलब कि इससे शौक लग सकता है, राइट। बात बदलने के लिए नौमी इसके कान में घुसकर बोला, पहले तुम पे ट्राई करूंगी, फिर दिखाओ। शरारती सी आवाज में कहते उसने माइक लेना चाहा तो नौमी झट से उछलता दूर हुआ। यार क्यों, तुम फुप्पो बनने से पहले ही खुद को और अपने भतीजों को सदमा देना चाहती है। वो मजूमियत से रवानसा हुआ। वो सब हंसे बगैर ना रह सके। भाई अब वाकई गुड़िया को फुप्पो बनाने के मिशन को कंप्लीट करना होगा। बाजार ने बेरा के लिए जूस लेकर आती अशी को देख शरारत से कहा, तो अशी ने इसको घूरा। आगे से उसने आंखें वांक की तो अशी के चेहरे पर गुलाल बिखरा। चुप करके पी जाओ। गुड़िया ये क्या हर वक्त
वक्त मास्क लगाए रखती हो, यहाँ कोई और नहीं है, सो उतारो। बेरा ने जूस का गिलास ईशी के हाथ से लेते पीछे खड़े शान को दिया। ईशी ने इसका मास्क उतारते इसका जूस देने के लिए हाथ बढ़ाया। खाली हाथ देख इसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। शान के हाथ में जूस का गिलास और इसके पेट में फिरते हाथ वो गुस्से से आग बगोला होती। तुम्हें शर्म वरम है, गुड़िया की चीजों पे नजर रखते हो हैं? शान के कान खींचते कहने लगी तो बेरा हंस हंस कर दोहरी हुई, भाभी आराम से खींचे ना, कसम ले ले बेरा ने खुद दिया है था। वो कहा कर बोला। अशी से छोड़ बेरा की तरफ बढ़ी। भाई आप ये आंखें वांखें और रोमांस कमरे में जाकर करो, आपको ऐसे देख मेरे दिल में आग लगती है। दानी ने अंदर आते अशी को गुस्से में बेरा की तरफ बढ़ते देख वो जल्दी से बोला, आओ मैं बुझाता हूँ तुम्हारी आग। बादल ने उसे घूरा, वहीं दाही ने इसको काला से पकड़कर झटका देते कहा तो दानी ने जल्दी से अपने सीने पर हाथों का क्रॉस बनाया। इसी जल्दी से रूम में भागी। बाजार ने गुड़िया को देखती गुड लक का इशारा किया और इसके पीछे गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, जवान भाई की इज्जत पे डाका डालते हुए तुम्हें जरा बराबर शर्म नहीं आई? इमरान ने संजीदगी से कहा, मगर आंखों से साफ इसकी शरारत झलक रही थी। दानी ने उसे भी अपने पास किया। वो कहका लगा गए, इस्तग़फ़ार, क्या ज़माना आ गया है, मुझे तो देखते हुए भी शर्म आ रही है। नौमी ने एक आंख पे हाथ रखते कहा, हाँ। बेरा ने उसे अभी इनकी तरफ धक्का दिया और कहका लगाकर हंस दी। वो सब वहीं मिट्टी में एक दूसरे पे फेंकने लगे। चलो गंदे हो गए तुम लोग, थोड़ी मिट्टी के साथ पानी का तड़का भी लग जाए। हरब ने पाइप से पानी इन पर गिराते कहा, भाई ना करो, अच्छा आ जाओ अब आप भी। दानी ने उससे टांग से पकड़कर खींचा। बेरा पहले तो इन पे पानी गिराने लगी, फिर वो भी इनके साथ मिट्टी में खेलने लगी। पूरा लॉन में इनके कहके गूंज रहे थे, नहीं मामा वो मेरी है, सिर्फ मेरी। ज़िया उर्फ सैफी अपने बाल नोचते अजीब से लहजे में बोला। मिसेस वजदान ने उसे गले लगाया। वो जब से आया था कमरे की हर चीज़ तहस नहस करते यही बोले जा रहा था, वो मेरी है, बस मेरी। वजदान साहब इसकी हालत देख परेशान हुए थे। वो जानते थे कि वो कभी भी सैफी से शादी नहीं करेगी, बेरा की। देखो सैफी, यूं रोने से वो तुम्हारी नहीं हो जाएगी, कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारी हो जाए। क्या करूं मैं मामा? वो इनकी तरफ देखते पूछने लगा तो मिसेस वजदान धीमे से उसे कुछ बताने लगी। कैसी माँ थी वो जो अपने ही बेटे को गलत राहों का मुसाफिर बना रही थी। थैंक्स मामा, आई लव यू सो मच। वो इनके गले लग के बोला। इसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। खुदा जाने वो क्या गुल खिलाने वाले थे, लेकिन इतना तो पता था कि इनका इंजाम बहुत ही दर्दनाक होने वाला था। उठो ना यार, कितना सोती हो, क्या ख्वाब देख रही हो? हमें ही देख रही होगी ना, चलो फिर आंखें खोल कर देख लो। दानी ने उसके मुंह से कंफर्ट हटाते कहा तो बेरा ने मुंह बनाते उसको घूरा। फकीरों की टोली यहाँ क्यों मौजूद है? भाई सड़क पे लंबी चौड़ी है, भाई सड़क बहुत लंबी चौड़ी है, वहीं जाकर चंदा मांगो। दाही ने अंदर आते इनकी सबकी हालत पर चोट करते कहा तो बेरा हंसी। या हम फकीर हैं क्या? अगर हैं तो तुम भी फकीर नहीं हो, ज्यादा दांत मत दिखाओ हमें। अदानी ने इसके गाल खींचकर कहा। इसकी हंसी को ब्रेक लगा। इसकी तो इन सब को पीछे करते वो बाजू चढ़ाते हरब की तरफ बढ़ी जो इसके तासर बूझते सीढ़ियों से नीचे भागा। वो सब इसके पीछे लपके। यार ये अपनी भाभी के घर देते आओ प्लीज, मुझे बाबा बुला रहे हैं। हारिस ने एक फूलों का गुलदस्ता और एक टोकरी जिसमें फ्रूट थे बेयर को देते हम मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो क्या समझेगी यार, चला जा, कुछ नहीं होता, बहन है तेरी, कोई गैर नहीं। वो इसके हाथों में पकड़ते बोला तो चारों न चारा बेयर को मानना ही पड़ा। वो चीजें लेते घर से निकला। अस्सलाम वालेकुम जी, किन से मिलना है आपको? सिक्योरिटी गार्ड ने संजीदा मगर अदब से पूछा। भाभी को ये देना है। इसके लहजे में एहतराम देख वो जवाबन बोला। अगर इसकी जगह कोई और होता वो हरगिज़ जवाब ना देता। वो मेन गेट खोलकर उसे अंदर जाने का रास्ता बताने लगा। वो अंदर ज़िग-ज़ैग ज़ू की तरह बने इस खूबसूरत से गार्डन जिसमें हर रंग के फूल मौजूद थे, ज़्यादातर काले फूल इर्द गिर्द लहर रहे थे, शायद यहाँ किसी को ज़्यादा ही पसंद थे। इतनी सिक्योरिटी, जगह जगह गार्ड्स को देख वो हड़बड़ाया। वो जैसे ही दखली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो किसी की खनखनाती हंसी ने इसकी समात में रस घोला। ये यहाँ तो कोई नहीं। फिर ये आवाज़। वो सब जगह नजर दौड़ाते बोला। कुछ ही सेकंड में सीढ़ियाँ
सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ पर वो सीधा हुआ। एक लड़के के पीछे लड़की और 3-4 लड़कों को भागते हुए देख वो हैरान हुआ। पिंक नाइटी में खुले बाल जो इसके चेहरे पर आ रहे थे, वो कहका लगाती इसका कॉलर पकड़ने लगी। हरप के बर वक्त नीचे झुकने पे वो बेयर के साथ नीचे गिरी। बेयर के हाथ से फूल ऊपर की तरफ गिरे, इनके ऊपर गिरने लगे। ये नहीं बदली, बिल्कुल वैसी है मेरी बेरी। ग्रे आंखें, गुलाबी गाल, गुदगुदी सुर्ख होंठ। वो इसको देखते खुद से बोला, अबे ओए पीछे हट ना। इब्राहिम ने इसको खींचते कहा तो वो जल्दी से इसके ऊपर से उठा। हरफ, दाही और इब्राहिम जल्दी से इसकी तरफ बढ़े। ठीक हो, लगी तो नहीं गुड़िया? वो सब यक आवाज में बोले तो बेहरा ने इन सब से नजरें बचाकर बाजू नीचे किए। नीचे गिरने से इसकी बाजू छिल गई थी। क्या हुआ गुड़िया? आशी ने इसके हाथ पकड़ते सख्ती से सबको देखते पूछा। दानी जल्दी से डॉक्टर को लाने को कहा। हरब ने उसे सोफे पे बिठाया। आशी भी परेशानी से उसे देख रही थी। इसकी छोटी सी चोट पे इन सबको घिन चक्कर बना देख वो हैरान हुआ। वहीं आशी को देख इसने रुख बदला। ये वो घर नहीं जहाँ तुम आए हो। सॉरी करो और चलते बनो। दानी के इशारे पर गार्ड ने उसे जल्दी से बताते रवाना किया, वरना कोई पता ना था वो लोग इसको भी मार डालते। बस हल्की सी खराश है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने डिटोल से उसके जख्म साफ किए और ट्यूब लगाकर बैंडेज करते कहा, मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर है, इसका इतना खून बह गया और ये कह रही है हल्की सी खराश है। इब्राहिम ने डॉक्टर को घूरते कहा तो बाकी सब ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। डॉक्टर गिड़बड़ाई, सर बस जाओ तुम। हरब भाई इसको पेमेंट दे और बाहर का रास्ता दिखाए। दानी ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखते कहा, अजीब लोग हैं, छोटी सी खराश पे इतना वलवला मचा रहे हैं। हरब ने फेंकने के अंदाज में इसको पैसे दिए तो बुड़बुड़ाती बाहर निकली, ये जूस पियो और मेरे रूम में लेट जाओ। इब्राहिम ने इसको जूस पिलाते कहा तो वह गहरा सांस भरते ब्रार के रूम की तरफ बढ़ी। कहाँ गया वो आदमी, उल्लू का पट्टा? इब्राहिम ने अपनी गन निकालते पूछा तो दाही ने इसके कंधे पे हाथ रखते कुछ इशारा किया तो वो मुठियां भेज गया। भाई को पता चला तो हरब तुम्हें इनके जलाल से कोई नहीं बचा पाएगा, दानी ने हरब से कहा तो वो हंसा। बच्चे के लिए जान भी का हाजिर है, वो बोला तो अच्छी समय सब मुस्कुराए। फिक्र तो सबको किसी और चीज की थी जो यकीनन वो बाजान से डिस्कस करने वाले थे। इसकी पसंद बदली है शायद उसे, तो मैं याद भी ना हूँ। क्या अब मैं इसको पसंद नहीं होऊंगा? ये सवाल इसके दिमाग को उलझा गया था। वो टेरेस से कमरे में आते अपने बैग से कुछ तलाशने लगा। मतलूबा चीज मिलते ही वो इसको अपने सीने से लगा गया। वो चीज एक तस्वीर थी, एक इकलौती तस्वीर जो इसने बचपन से अपने सीने से लगा कर रखी थी। वो तस्वीर थी इसके जुनून की। वो तस्वीर को देखते मुस्कुराया जिसमें एक छोटी सी 2 साल नीली आंखों वाली बच्ची इस नीली आंखों वाले लड़के का हाथ पकड़े आइसक्रीम कम मुंह पे ज्यादा लगा ली थी। इस नीली आंखों वाले लड़के को घूर रही थी, अगर तुम मुझे भूल भी गई तो मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से अच्छी यादें बनाऊंगा। वो इसकी तस्वीर पर लब रखते बोला, सर अफरीदी कई लड़कियों की तस्वीर है। एक गार्ड ने 2 तस्वीरें टेबल पर रखते जोश से कहा तो मलिक मुस्कुराया। निकाह में छुपी ग्रे आंखों में मौजूद सर्दीलापन एक बार इनके दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन ये सोचते कि लड़की यह क्या कर लेगी वो बेफिक्र होते इसके मौत के मुंह तक पहुंचने के मंसूबे बनाने लगा। इसी चिड़िया में इन 9 भाइयों की जान बंद है, चलो अब इनको छोटा सा झटका देते हैं। वो कहका लगाते बोला, अशी की तस्वीर नीचे होने की वजह से वो देख ही ना पाए, वरना झटके तो इन्हें मिलते, वो भी 1000 वॉट और के दिन पर लगा कर गुजरे। कुछ दुश्मन अफरीदी को ख़त्म करने के घटिया जाल बुन रहे थे, वहीं अफरीदी सब की खबर रखते हुए भी लापरवाह थे। बेरा की चोट की खबर बाजार को मिली तो इसने इन सबको ही लाइन में खड़ा करते जूते मरवाए थे, जो मारने वाली खुद इनकी गुड़िया थी। इन दिनों सारे भी पाकिस्तान किसी काम के सिलसिले में आया तो वो बेरा की जद पे कुछ दिन इनके पास
बेहरा की जिद पे कुछ दिन इनके पास रुका था। अभी भी सब अपने जिम्मे लगी ड्यूटियों को सर अंजाम देने निकले थे। नोमी इसी के साथ पार्लर गया था। बकूल इसके उसे भी मिनी क्योर पेडिक्योर करवाना है। ही शान किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में इटली गया था और बेहरा सारेब सुबह से बातों में लगे थे। फिर वो सारेब से ही अपने बाल बनवा रही थी कि सारेब को बाजिल की कॉल आई, जिसे सुनते बेहरा के बालों में हेयर बैंड लगाते इसके हाथ रुके। भाई बुला रहे हैं गुड़िया। सारेब ने इसके बालों में हेयर बैंड लगाते कहा तो वो करती उठी। ख्याल से जाना, अगर भाई ने तुम्हें अकेले ना बुलाया होता तो मैं लाजमी आता तुम्हारे साथ। वो उसके हाथों को चूमते प्यार से बोला तो बेहरा ने समझते सर हिलाया। चलो ख्याल रखना, ओके। सीधा फार्म हाउस ही जाना, ओके। बी केयरफुल। सारिब के बार बार ख्याल रखने कहने पर वो आंखें घुमा गई। मुझे गुमान हो रहा है कहीं मैं अभी भी 10 साल की बेरी तो नहीं। वो बच्चों सी शक्ल बनाकर बोली तो सारिब ने इसके बाल ठीक करते इसके नाक खींची। जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ मेरे लिए तो बस 2 साल की गुड़िया ही रहोगी मेरी। चलो जी, मैं एक काम करती हूँ, भाई की बात सुनकर आती हूँ, फिर बताऊंगी। वो इसके माथे पे भूसा लेती, मास्क उठाती, बाहर निकलती, बोली आराम से जाना। वो एक बार फिर उसे याद दहानी करवाने लगा तो वो सर हिलाती गाड़ी में बैठी। जैसी वो निकली गार्ड की 4 गाड़ियां इसके पीछे निकली। पहले ऑफिस में हरब भैया और दानी से मिल लो। वो ऑफिस के सामने गाड़ी रोकती, नीचे उतरी। इर्द गिर्द के लोगों ने उसको देखती नजरें झुकाई। जानते थे अफरीदी सर फिरे हैं। मारने के बाद सोचते हैं कि किसको मारा। वो ऑफिस में दाखिल हुई तो सबने खड़े होकर इसका वेलकम किया। वो सबको एक नज़र देखती। बाजिल के ऑफिस में दाखिल हुई, बिना ऊपर देखे वो मास्क उतारती सोफे पे धप से गिरी। सामने वाले ने गहरी नज़रों से उसे देखा। थक गई दानी, चल बेटा बाहर से कोल्ड ड्रिंक ला के पिला। वो आंखों से गिलासेस उतार कर रखती बोली, कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। किसी और की भारी आवाज़ सुन उसने झट से सामने देखा। घुटने पे घुटना चढ़ाए, ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट, ब्राउन बालों को माथे पर बिखेरे बेयर मलिक अपनी काली गहरी आंखों से उसे देख रहा था। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो तैश में खड़ी होती गड़गड़ाई। कमाल है जनाब, अब सिर्फ अफरीदी ही हर जगह पाए जा सकते हैं क्या? वो तंजिया मुस्कुराहट से बोला तो बेहरा ने मुठ्ठियां भेजी। गुस्से से इसका रंग सुर्ख होने लगा था। क्योंकि अफरीदी को तमीज़ है, इसीलिए सब इन्हें खुद अपनी तरफ मदद करते हैं। वो क्या है ना, हमें बिन बुलाए मेहमान बनना पसंद नहीं। वो भी इसी के लहजे में से जवाब देती हंसी। बेया ने मुस्कुरा कर उसे देखा। इसकी बातों पे भला वो भी कभी नाराज ये गुस्सा हुआ था? नहीं, कभी नहीं। मैं मेहमान तो नहीं, मैं तो बहुत करीबी हूँ, वो हल्की सी आवाज में बोला। लेकिन बेहरा की तेज स्मार्ट ने सुन लिया। हाँ राइट, वही मैं सोचूं हमारी डॉग्स कब से बाहर तलाशी नजरों से देखते किसी को ढूंढ रहे थे। अब पता चला वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आखिर को आप जनाब इनके करीबी जो हुए। वो इसका मजाक उड़ाती बोली। बेहरा दरक मलिक, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली को। बेहतर है मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। वो इसका पूरा नाम लेते चबा कर बोला। वो जो जाने लगी थी झटके से मुड़ी। शौक लगा। शौक में नहीं हूँ, ये जानना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो तुम्हारे ऑफिस में है इसमें साफ लफ्ज़ों में बयान किया गया है बहरा अदरक मलिक है। तंजिया मुस्कुराहट से वो इसको ये जतला गई कि वो तुमसे भी बाखबर नहीं। तुम्हारे हर अमल पर नज़र है मेरी। इसी चीज़ पे एक इनाम तो बनता है ना। वो इसको देखते बोला। जो ब्लैक जीन्स शर्ट में खुले बालों के हालिया में चमकता चांद लिए अपने ग्रे किनारों से सुर्ख होती आंखों से घूर रही थी। बेहरा अभी कुछ समझती कि वो इसकी कलाइयों को इसकी कमर से लगाते अपने करीब कर चुका था। बेहरा ने टांग उसे मारनी चाहिए, लेकिन वो अपनी टांग से इसकी टांगों को लाक कर गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो यू ब्लडी। वो गुस्से से उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन वो मजीद इससे चिपके जा रहा था। इससे पहले वो गाली देती, वो इसके होंठों पे होंठ रखते इसकी लफ्जात को रोक गया। ग्रे आंखें सदमे से फटी की फटी रह गई। तुम्हें छोड़ना यानी अपनी जान अपने ही हाथों से लेना। वो धुनकी की मां चलती सांसों में इसकी पेशानी से पेशानी अटका गया कि इसकी कातलाना ग्रे आंखों में देखती भारी बोझल लहजे में बोला, तुम पागल हो क्या? ये
کیا ایڈیٹ. وہ شدید غصے میں مطلبہ ہوتی اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی چیخی اور بیٹھتی چلی گئی. گرے آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تیار تھے. اس کی ایسی حالت دیکھ وہ چونکا. بچپن سے اب تک ظلم بے حسی کی وہ مورت تھی. آج اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ وہ اپنے ہونٹوں کو رگڑتی بار بار ایک ہی بات دہراتی کیوں؟ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی. کیا ہوا تمہیں گھٹیا انسان؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ میں اس کو کیا جواب دوں گی کہ تم کمینے انسان نے مجھے چھوا تھا. وہ اس کا کالر پکڑ کر تیش میں آتی دھاری. اپنے غصے میں وہ اس کے کافی قریب آ چکی تھی. اس کی کمر کو سہلاتے وہ اسے خاموش کروانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ادرک. وہ روتی ہوئی اسے یاد کرتے اس کے گرد ہارس باندھ گئی. اسے لگا جیسے اس کو ادرک ہی سینے سے لگائے کھڑا ہے. وہ ہوش میں آتی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی. آئندہ قریب آنے کا سوچا بھی تو جان سے مار دوں گی. سب جانتے ہو. تم یہ بھی جانتی ہی ہوگے کہ میں انہی کو مارتی ہوں جن کو میرا دیدار نصیب ہوتا ہے. سو اب تم بھی تیار رہنا. وہ آنکھوں پہ گلاسز لگاتی سرد لہجے میں بولی اور اس کی سنے بغیر بنا ہی وہاں سے نکل چلی تھی. اف. اگر اس دیدار کی سزا موت ہے تو میں خوشی 1000 بار مرنے کو تیار ہوں بشرطے یہ کہ میرا قاتل بھی تم اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے کرو. وہ اپنا کالر صحیح کرتے اپنے ہونٹوں کو چھو کر بہکے لہجے میں بڑبڑایا. یہ جانے بغیر ایک نیا خطرہ ان کے سروں پر منڈرا رہا ہے. آزمائشیں شروع ہونے کو تھی. ہجر تھا تو محبوب کی قربت بھی تھی. رشتہ بحال کاش پھر اس کی گلی سے ہو. جی چاہتا ہے عشق دوبارہ اسی سے ہو. انجام جو بھی ہو مجھے اس کی نہیں ہے فکر. آغاز داستان سفر آپ ہی سے ہو. خواہش ہے پہنچوں عشق کے میں اس مقام پر جب ان کا سامنا میری دیوانگی سے ہو. کپڑوں کی وجہ سے مجھے کمتر نہ ان کی. اچھا ہو میری جانچ پرکھ شاعری سے ہو. اب میرے سر پر سب کو ہنسانے کا کام ہے. میں چاہتا ہوں کام یہ سنجیدگی سے ہو. دنیا کے سارے کام تو کرنا دماغ سے لیکن جب عشق ہو تو وہ جی سے ہو. ابرار اگر تم باز نہ آئے تو کچھ اٹھا کے تمہارے سر پہ دے ماروں گی. شرافت سے موبائل پکڑو مجھے اور پتلی گلی سے نکلتے بنو. وہ غصے سے جیسی فارم ہاؤس داخل ہوئی تو ابرار نے اس کا موبائل کھینچا تو وہ غصے سے دھاڑی. اس کی دھاڑ پہ جہاں ابرار دانی حیران ہوئے وہی بہادر سیڑھیاں اترتے تھما. سب کی نظروں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ ایسا بھی کیا ہوا کہ بحیرہ افریدی غصے سے اپنے بھائی پر چلانے لگی. سرخ و سفید رنگت پہ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے بالوں کو ٹیلی فون میں مکید کیے گلابی ہونٹوں کو بھینچے گلابی غصے سے تمتماتے گال چھوٹی سی ناک پہ غصہ لیے گرے بڑی بڑی آنکھوں میں نفرت سے پھیلی سرخیاں وہ آگ بگولا لگ رہی تھی. آئی ایم سوری گڑیا تمہیں برا لگا. اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کیے وہ شرمندگی سے اسے فون لوٹاتے بولا تو بیرا کو اپنے لہجے کا احساس ہوا. اس نے سب کو دیکھا جو فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے. وہیں بازان نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا. بیرا سے ملنے کے بعد اس کا دماغ میں کئی سوچیں آ رہی تھی اسی لیے وہ غصے میں ابرار پہ چلائی. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابرار کے گلے لگتے سسک پڑی. اب تو بازان بھی بے چینی سے اس کے پاس آیا. گڑیا میری جان کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ حرم نے پوچھا تو ابرار نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے باہر پول کے پاس لے آیا تاکہ وہ کچھ اچھا محسوس کرے. پریشان ہو. میں جانتا ہوں تم نے جان کر کچھ نہیں کیا. ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور ہم نے اپنی گڑیا کو اتنا بہادر تو بنایا ہی ہے کہ وہ خود کو تکلیف پہنچانے والے پر ہر شخص کی نسلیں تک اجاڑ سکے. ناممکن سی بات ہے. جو تمہیں کوئی کام مشکل لگے پھر بھی کچھ مشکل ہے تو ہمیں بتاؤ. ہم
इस शख्स की ऐसी हालत करेंगे कि इसकी नस्लें भी अफरीदी से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगी। इब्राहिम ने नरमी से इसके बालों पे भूसा देते इसको समझाया भी और हौसला भी दिया कि इसके भाई हमेशा इसके साथ खड़े हैं। वो हंसकर दूर हटती पूल में पाँव लटका कर बैठी, वो भी इसके साथ आ बैठा। सॉरी भाई, बस थोड़ी सी उलझन का शिकार थी, लेकिन तुम्हारी बातों से ठीक हो गई। वो इसके कंधे पर सर रखती बोली तो इब्राहिम ने नफी में सर हिलाते इसकी पेशानी चूमी। भला कहाँ मंजूर था कि इसकी गुड़िया किसी के सामने झुके। अच्छा, मतलब कि बैटरी लो हो गई थी, अब चार्ज हो गई। धप से एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते वो इसके साथ बैठते बोले तो बेरा ने कहका लगाते सर साबत में हिलाया। वैसे कितने मीन हो तुम लोग, बातें सुन रहे थे हमारी। बेरा ने कमर पे हाथ रखते कहा तो वो सब ही करके दांत दिखाने लगे। इनकी शक्लें देख वो वहीं हंसती हंसती जमीन पर ऊंधी हुई आराम से। इन सबके मुंह से निकला तो वो रोक कर इनको देखने लगी। फिर वो सारे ही एक दूसरे पर पड़े हंस हंस कर पागल हो रहे थे। आसमान पे स्याही फैल चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। इस अंधेरे में हरब, सारेब, दाही, दानी और इब्रार एक बिल्डिंग के नीचे स्याह कपड़ों में मुबलिस इस स्याही का ही हिस्सा मालूम हो रहे थे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक अंदर 40 गार्ड मौजूद हैं जो इस हीरे की निगरानी के लिए तैनात किए हैं। इस मलक ने खामोशी को चीरती सारेब की वहशत से भरपूर आवाज ने इस वहशत बिखेरते माहौल को मजीद वहशी किया। हरब, दानी और दाहिन तुम पीछे से जाओ। इब्रार तुम बम फिट करो, सब एक्टिव रहना। ओके गो। वो आगे बढ़ा। इब्रार बम फिट करने लगा। हरब, दानी और दाही सब जैसे अंदर गए वहां सब ही नशे में धुत पड़े थे। ये तो टुन है। दानी ने इन सब को देखते कहा बच के। दानी के पीछे खड़ा वो गार्ड इन पे गोली चलाता। हरब ने दोनों हाथों में गन लेते इसको शूट किया। चुपचाप बंदूक रख दो वरना मारे जाओगे। वो सब इन पर गन तान गए तो इनके लीडर ने इनके धक्के चेहरों को देखते कहा। दानी ने हुड्डी कोई अजीब व गरीब चीज निकाली जो हरब की इजाद की गई थी, इनके पास फेंकी और खुद नीचे झुके। बिल्डिंग में धुएं की सूरत फैलती स्प्रे इनका सांस रोकने की वजह बन रही थी। गार्ड मुंह को कवर करते इन्हें शूट करने लगा, मगर वो एक के बाद एक फायर करते इनको मार गिरा रहे थे। सारब का सामना 10 हटे कटे गार्ड से हुआ जिनके हाथ हथियार की सूरत में चाकू और कांच की बोतलें थी। वो सब एक साथ इसकी तरफ बढ़े। सारब ने लोहे का जंजीर निकालते घुमाया और कुछ ही सेकंड में वो सब नीचे पड़े तड़प रहे थे। जंजीर पे कांटे की शक्ल में बने लोहे के कांटों पर लगा जहर सेकंडों में इनकी जान लेने लगा। सलाम है गुड़िया, वो मुस्कुराते हुए बोला। ये जंजीर बेरा ने ही उसे गिफ्ट किया था। वो इनका खात्मा करते आगे बढ़ा। डन। ब्लूटूथ के जरिए वो सब बोले और वहीं बिल्डिंग के बीचों बीच इकट्ठे हुए सिवाय इब्रार के। इब्रार कोई जवाब न पाते वो सब बाहर भागे। पीछे कोई चोरी छुपे अंदर घुसा। वो सब जैसे ही बाहर गए सामने ही 2 शेर इब्रार पर हमला करने को तैयार थे। बस 10 फुट की दूरी पे थे और वो मुस्कुरा रहा था। काम हो गया भाई, बस ये दोनों हमें अनारकली डांस करके दिखाने आए हैं, इब्रार ने कहा तो वो सब कहका लगा गए। भाई एक सेल्फी हो जाए। नोमी ने कैमरा लेकर एंट्री मारते कहा तो सबने हैरानगी से उसे देखा। दूसरी तरफ बिल्डिंग में ब्लास्ट हुए। यही वो मनाज़िर था जो कैमरे में कैद हुआ। तुम यहाँ कैसे आए? सारेब ने नोमी से पूछा जो साख्त खड़ा बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। शेर जोर से दहाड़ते तबाह हुई बिल्डिंग की तरफ भागे। वो हैरान होते शेरों को देखने लगे जो पत्थर हटाते जाने क्या ढूंढ रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? दानी ने इसको हलाते कहा जो उसको पीछे धकेलते गुड़िया गुड़िया कहते शेरों के पीछे भागा। गुड़िया गुड़िया वो पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर उसे पत्थर हटाते चीख चीख कर उसे पुकार रहा था। वो सब सदमा फिर गम व गुस्से में आवाजें देते उसे ढूंढने लगे। आह गुड़िया। कहीं ना मिलने पर वो वहीं घुटनों के बल गिरते चीखे
नोमी तो बाकायदा सारब के गले लगे रोने लगा था। इब्रार, हरब, दानी और दाही का हाल भी इनसे मुख्तलिफ ना था। ओए गधो, कान के पर्दे क्यों फाड़ रहे हो? वो कानों में उंगलियां देती बोली तो सबने पीछे मुड़कर देखा। इसको सही सलामत देख वो सब के सब एक साथ इसके गले से लग गए। इन सबको यूं रोता देख वो हंसी। वो तो बम ब्लास्ट होने से पहले ही हीरा लेती बाहर निकली थी और यहाँ इन सब की जान हलक में अटकी थी। वैसे इससे ये पता चल गया है कि मेरी क्या अहमियत है तुम सबके दिल में। चलो अब मर भी गई तो रोने को अपने भाई तो होंगे। इसकी बात पे शेर जोर से दहाड़े। वही इन सब के तासुर देख वो हंसती खिलखिलाती भागी और वो सब इसके पीछे। ये तुमने अच्छा नहीं किया बाजान। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। मलिक को जैसे ही खबर हुई कि इसके आदमियों के साथ अफरीदिन्स ने इसके हीरे भी चुरा लिए, तब से पागल हुआ फिर रहा था। तुमने मेरे हीरे चोरी किए, अब मैं तुम्हारा हीरा तुम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए छीन लूँगा। वो नशे में डूबी हुई आवाज़ में बोला और किसी को कॉल की। इस लड़की की मुझे लाश चाहिए किसी भी हाल में। वो ज़ोर से चीख कर बोला। सामने वाले ने समझते फ़ोन ही रख दिया। आशी इस वक्त इन सब की शक्ल देखने वाली थी। हा, जब मैं इनको मिल नहीं रही थी। वो हंस कर पागल होती। कब से आशी से फ़ोन पे लगी हुई थी और वो सब सूजी हुई आंखों से अपना मजाक बनता देख रहे थे। मिशन कंप्लीट होने के बाद ही वो लोग फार्म हाउस पे रुके थे और इस वक्त वो सब की ऑफिस में मौजूद थे। बाजान मीटिंग अटेंड कर रहा था और ये लोग गप्पे हाँक रहे थे। ये तुम लोगों की आंखों को क्या हुआ? बाजान ने अंदर दाखिल होते इनकी सूजी आंखों को देखते वजह पूछी तो गम से भरे बैठे नोमी और दानी भागकर इसके गले लगे। उस ए से जेड तक इसको बताया तो बाजान फिक्रमंद होते बेरा के हाथ पांव चेक करने लगा और फिर से पेट पकड़कर लुटपुट हुई। आज लग गया पता मैं सच में नन्ही काकी हूँ। वो हंसते हंसते बोली तो अब की बार वो सब भी हंसने लगे। इनको चाहिए ही क्या था, बस अपनी गुड़िया की खुशी। अच्छा अब बताएं क्यों बुलाया है? और मुझे कुछ पता चला है लेकिन बिजी होने की वजह से मैं पूछ ना सकी। वो संजीदा होती इन सबको पुरसोच अंदाज में देखती बोली। हम जानते हैं आपकी बाज की नज़रों ने सब समझ लिया होगा। हरब ने इसके बाल ठीक करते कहा तो बेरा ने दांत दिखाए। आपकी भाभी का भाई वापस आ चुका है, अदरक मलिक। इस नाम पे बेरा ने नजरें उठाकर उसे देखा और कंधे उचकाती इर्द गिर्द देखने लगी। दिल तो इसके नाम पे ही धड़क उठा था। वो मुस्कुराए। वो थी तो इनकी ही गुड़िया, कैसे ना समझते, जो रात के सोते हुए भी इसको पुकारा करती थी। जो डायमंड्स हमने इस मलिक से छीने हैं इसकी कीमत करोड़ों में है। सारब ने इनको तलाक की लेकिन हम उसे बेचेंगे नहीं क्योंकि वो हमारी अपनी मेहनत के नहीं है, इसीलिए। बेरा ने सबको देखते कहा। हाँ फिर हम इनका क्या करेंगे? नोमी ने उलझते पूछा तो बेजान सारब और बेरा मुस्कुराए। वैसे तो वो ये हीरे लेने के लिए कुछ भी करेगा लेकिन हम इनको उसे मारने के लिए ही इस्तेमाल में लाएंगे। सारब ने हीरों को सोचते हुए कहा। प्लान क्या है? अबरार ने आगे होकर पूछा। बाकी सब भी सवालिया नज़रों से बाजिल को देखने लगे। प्लान ये है कि वो बता रहा था, पहले तो इन हरब, दाही, दानी, इब्रार, नोमी और सारिब की जान भी हलक में आई लेकिन बेरा आराम से बैठी थी। गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। वो यक ज़बान बोले। बाजान ने इनको घूरा। सब कुछ प्लान किया है, किसी को कुछ नहीं होगा। सारिब ने जैसे खुद को तसल्ली दी तो बाकी सब ने भी सर हिलाया। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, शान से बात भी करनी है और भाभी को घुमाने ले जाऊंगी। बेरा ने खड़े होते कहा तो वो सर हिला गए। अब मैं भी चलूं? नहीं, आपसे काम है हमें। नोमी जोश से खड़े होते बोला लेकिन दानी ने इसकी गर्दन में बाजू डालते अपने पास खींचते कहा कि अगर मैं यहाँ हूँ तो तुम भी कहीं नहीं जाओगे। बेयर कल मेहंदी है, तुम चलो हम शॉपिंग कर आते हैं। हारिस ने बेयर को कहलाते कहा जो ना जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। बोलो।
बेयर जो बेहरा के बारे में सोच रहा था, इसके हिलाने पे होश में आया। कहाँ गुम हो यार, चलो माल चलते हैं तुम्हारी ड्रेसेस लेने। वो एक बार फिर अपनी बात दोहराते बोला, नहीं मेरे पास बहुत सी ड्रेस है, मैं ज़रा अकेले रहना चाहता हूँ, सो अभी मैं बाहर जाने लगा हूँ, अल्लाह हाफिज। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में उलझा हुआ था, इसीलिए इसको कहते वो जंगल की ओर बढ़ा था। सर वो लड़की अभी अपने ऑफिस से निकली है और उसी गाड़ी में बैठने लगी जिसमें बम फिट किया है। ग्रे आंखों वाली लड़की को देखते हुए शख्स कान में लगे आले से अपने बॉस से गोया हुआ, हा हा हा, गुड, अब बच के दिखाओ तुम लोग। कहा था ना हर अब तुम्हारे घर के सभी अफराद के चीथड़े उड़ा दूंगा। अब तुम्हें पता चलेगा ये मलिक क्या चीज़ है, जब अपनी जान से प्यारी बहन के यूं टुकड़े टुकड़े होते देखोगे। हाँ 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 हाँ, वो मगरूर बना कि कहका लगा रहा था ये जाने बगैर कि इस बार जिस हस्ती को वो चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा है, जिसकी छोटी सी सिसकी पर ही इसके भाई तड़प जाते हैं, इसकी तकलीफ का सबब जो बनता था, इसकी हस्ती ही दुनिया से मिटा देते थे। वो ग्रे आंखों वाली लड़की जैसी ही गाड़ी में बैठी, इस शख्स ने रिमोट का बटन दबाया। गाड़ी के नीचे से आंख के शोले निकले और गाड़ी एकदम ऊपर हवा में उड़ती दूर कलाबाजियां खाते जा गिरी। गाड़ी का बैक फ्रंट सब कुछ टूट फूट चुका था। सड़क पे आती गाड़ियों से लोग रुक रुक कर इस गाड़ी को देखकर यही अंदाजा लगा रहे थे कि जो भी इसके अंदर होगा, इसका बचना नामुमकिन था। सर काम हो गया, वो लड़की और गाड़ी दोनों ही तबाह कर दी हमने। वो आदमी पर जोश होते बोला, शाबाश, अब इस लड़की के टुकड़ों को उठाओ और अफरीदी हाउस गिफ्ट भेज दो। वो आदमी कहते ही कार डिस्कनेक्ट कर गया। गार्ड गाड़ी की तरफ बढ़ा ताकि इस ग्रे आंखों वाली लड़की को उठा सके, लेकिन गाड़ी में तो किसी का नामो निशान तक नहीं था। वो बुखलाकर इधर उधर ढूंढने लगा, उफ कहाँ गई ये भला, ना मिली तो बॉस मुझे जान से मार देंगे। वो परेशान होते बड़बड़ाया, क्या मुझे ढूंढ रहे हो? बारीक मीठी सी आवाज़ पर वो मुड़कर इस सुरीली सी आवाज़ वाली को देखने लगा, मगर इसको देख उसे अपनी मौत नजर आई। वो दुम दबाकर भागा, मगर अब बच पाना कहाँ आसान था। ग्रे आंखों वाली लड़की ने इसके पीछे भागते इसको कॉलर से पकड़कर पीछे खींचा। वो गार्ड जमीन पर जा गिरा। क्या लगा कि अफरीदी को मार लोगे इतनी आसानी से? वो इसके मुंह पे मुक्का मारते गड़गड़ाई। लोगों का वही झरमट बनने लगा। सब इर्द गिर्द फैले इस लड़के को एक लड़की से मार खाता देख रहे थे। कोई भी आगे आने को तैयार ना था, क्योंकि पूरे इलाके में ग्रे आंखों वाली लड़की की वहशत छाई हुई। अफरीदी का नाम सुनते ही लोग खौफ खाते थे। इसको मार वो फना कर चुकी थी। वो गार्ड अब बेहोश हो चुका था। साथ वाली दुकान से पानी की बोतल उठाकर इस पर ढाली। वो दर्द से चीखता उठने से काजिर था। चल तेरी मौत आसान करती हूँ, ये बता कि किसके कहने पे ये काम करने लगा था। वो उसके करीब 1 घंटे पे घुटने पर बैठती सर्द लहजे में गोया हुई। वो गार्ड दर्द और खौफ से होंठ भेजे उसे देखने लगा, और फिर जो नाम उसने बताया, ग्रे आंखों वाली लड़की का दिमाग घुमा। उठते ही उसने इसको गोलियों से भून के रख दिया। जाओ जाके कह दो अपने उस बॉस से कि अफरीदी किसी के बाप से भी नहीं डरते। अगर इसमें हिम्मत है तो सामने से वार करे, यूं छुप छुपा कर तो कायर और बुज़दिल वार करते हैं। वो वहाँ मौजूद सब लोगों को देखती सदमहरी से बोली और कार में बैठती गाड़ी को जन से भगा ले गई। औकात की बात मत कर, जिस गली में हम कदम रखते हैं दुश्मन भी कहते हैं चलो रास्ता दो, नवाब आ रहे हैं। थकन थी या कुछ और जो वो समझना नहीं चाह रही थी। अभी भी सोए बेरा के सब रूम से बाहर लाइन में खड़े थे। भाई गुड़िया को बता दो भाभी की तबीयत क्या है? इब्रार ने पूछा तो बाजार ने नफी में सर हिलाया। लेकिन मैं इसको बता चुका हूँ, दानी ने दाही और हरब से कहा तो वो दोनों से घूरने लगे। इतने में डॉक्टर बाहर आई तो सब इनकी तरफ बढ़े। मेरी वाइफ मुबारक हो, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। उन्होंने गोया इन सब के दिल खुशियों से भर दिए। बाजार जल्दी से अंदर बढ़ा, जहाँ आशी मिरर में पेट को देख रही थी। थैंक्स जानम, वो इसको पीछे से अपने हारस में लेते सरगोशी नुमा आवाज में बोला तो इसी मूर्ति इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। बाजी, वो आहिस्ता से बोली, बोलने
اس کے ہونٹ اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے، وہ مسرر ہوا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ بیٹی ہوئی تو خدا کا شکر کروں گا کہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، اگر بیٹا ہوا تو بھی شکر کروں گا کہ انہوں نے ہمیں نعمت دی۔ وہ اس کے سوال کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کرتے بولا، وہ جانتا تھا اس نے یہ سوال کیوں کیا۔ حد ہے نا، اب بیبی آنے والا ہے اور آپ لوگ کچھ شرم کر لیں یار، ہمیں اپنی بھابھی سے ملنے دیں۔ دانی کی زبان میں کھلجلی ہوئی تو وہ دانت دکھاتے نکالتے بولا، کباب میں ہڈی تو نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا نا۔ بازان کے بولنے سے پہلے نومی کی زبان مچلی۔ آشی اس سے دور ہونے لگی تو بازان نے اس کی کلائی پکڑتی اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتے وہ اس کو اٹھاتے بیڈ پر لٹا گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ سب ایک ایک گفٹ پھول اٹھاتے اندر آئے۔ سب نے اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیے، تھینکس کہا سب سے۔ اینڈ میں نومی دانت دکھاتے آیا، آپ کے لیے، انفیکٹ ہمارے ننھے افریدی کے لیے یہ گفٹ۔ اس نے اب ایک بالون جس میں کافی ساری چاکلیٹس تھی وہ آشی کے سر کے اوپر پھوڑا تو چاکلیٹس کے ساتھ آشی کی گود میں گن گری، جسے دیکھ کر وہ حیرانی سے نومی کو دیکھنے لگی جو دانت دکھا رہا تھا، نظر گھما کر بازان کو دیکھا جو اسے گن اٹھانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تم سے تو بعد میں پوچھتی ہوں۔ گن اٹھا کر سائیڈ میں رکھتے وہ نومی سے بولی تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ذرا سا نیچے جھکا اور جی حضور کہتے بازان کے گلے لگا۔ سب سے زیادہ ضروری انسان تو آیا نہیں؟ وہ پیچھے دروازے کو دیکھتی اداسی سے بولی، لیکن جہاں افریدی ہو وہاں سائیڈنس مشکل ہی بات ہے۔ میں ہوں نا، دانی بالوں کی وگ اور پاؤں میں ہیلز پہنے دروازے پہ کھڑا کوئی جوکر لگ رہا تھا۔ وہ بیرا کے سٹائل میں چلتے ہوئے آیا تو سب کی ہنسی نکلی۔ وہ اس کے پاس دھپ سے بیٹھا کہ اس کی وگ گری جو وہ پھیکی ہنسی ہنستے وگ صحیح کرنے لگا۔ اس کو دیکھ سیریس انسان بھی اپنے قہقہے کو ضبط نہ پایا۔ آپ جانتی نہیں ہیں، آپ نے مجھے یہ خبر دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آئی لو یو سو مچ آشی۔ وہ لڑکیوں والے انداز میں بولا تو آشی کا ہنس کے برا حال ہو گیا۔ وہ ایسی ہی سب کو ہنساتے خود بھی ہنسنے لگا، یہ جانے بغیر کہ جس کو یاد کرتے ہنس رہے ہیں شاید وہ ہمیشہ کے لیے ایک یاد ہی نہ بن جائے۔ وہ سوچوں پہ ڈوبے گہرے جنگل کی طرف گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ ایک نہر، اس پر تنگ سی پل تھی جس سے ایک وقت میں صرف ایک گاڑی کا گزارا ہو سکتا تھا۔ وہ ابھی پل کے درمیان میں ہی تھا کہ سامنے سے بلیک پروڈو کو آتا دیکھ جلدی سے بریک پہ پاؤں رکھا۔ ہواؤں کا رخ بدلا تھا، بادل برسنے کو تیار تھے، نہ جانے اب کی بار وہ کس کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گے۔ بیرا نے گاڑی کو دیکھتی ہارن بجایا، اشارہ تھا کہ اپنی گاڑی ٹیک کرو۔ سامنے سے بیر نے بھی ہارن دیا تو بیرا کو غصہ آیا۔ وہ دونوں ہی بار بار ہارن بجانے لگے مگر دونوں ہی ضد پر اڑے تھے۔ ایک کہتا تھا دوسرا گاڑی پیچھے لے اور دوسرا کہتا تھا پہلا۔ تنگ سی سڑک پر وہ دونوں سرفرے اپنی ضد پر اڑے تھے۔ اس کی تو ہے کون آخر جس نے میرا راستہ روکنے کی ہمت کی؟ وہ غصے سے بولی اور سیٹ بیلٹ اتارتے دروازہ کھولتے ایک ٹانگ اندر اور ایک ٹانگ باہر نکال لے کے اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا، ہلکی برساتی بارش اور تیز ہوا سے اڑتے اس کے بال، اور آج بدقسمتی سے وہ سارے گارڈز کو بھی بے عزت کر کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ یہ نازک سی لڑکی میرا مقابلہ کرے گی، ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی کار سے نکلا، سامنے گرے آنکھوں کو دیکھ وہ چند لمحے ٹھٹکا، پھر اس کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ وہ دونوں گاڑیوں سے نکلتے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ بارش تیز ہوئی، آسمان میں بجلی زور و شور سے گرجنے لگی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، وہ بارش سے دھندلاتے گلاسز اتار کر اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آہا، تو اب ملک افریدنس کو ان کی بہتری بتائیں گے۔ گرے آنکھوں میں تمسخر ابھرا۔ بیر نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے اسے دیکھا۔ برساتی تیز بارش سے اس کی وائٹ شرٹ اور بلیک جینز بھیگ کر اس کے نشو و فراز کو واضح کر رہی تھی۔ وہ نظریں پھیرتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ افریدنس پیچھے نہیں ہٹتے، بیئرز ملک نے کبھی پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ دو بولا، اس کا نام سن۔ گرے آنکھوں میں کچھ پل حیران ہوئی، پھر اپنی ٹون میں آئی، جانا تو تمہیں ہی پڑے گا مسٹر بیئر ملک، کیونکہ بیئر
बेहरा आफरीदी अपने कौल से पीछे नहीं हटती। वो सख्त लहजे में बोली, ये तो सरासर झूठ है, तुम अपने कहे से पलट चुकी हो। वो इसके करीब झुकते बोला। ग्रे आंखों ने सख्त नजरों से उसे देखा। कब की बात कर रहा था वो? क्या वो इसको जानता था? ये तो बस सवाल थे जो वो इससे हरगिज ना पूछती। तो तुम्हें तफसीलात देने का टाइम नहीं, सो मुंह बंद करो और निकलते बनो। वो सच झटकती नागवारी से बोली तो बेयर ने इसको बाजू से दबोचते अपने करीब किया। तमीज से बात किया करो बेरी, मुझे सख्त लहजा अख्तियार करने पे मजबूर मत करो। वो थोड़ा सख्त लहजे में इसके गाल सहलाते बोला। वो इसके लम्स इसकी हरकत पे स्टिल हुई। यार बेरी, तुम इतनी मीठी हो, जब टूटा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसी बच्चे की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। बेयर का ये अंदाज इसको किसी की याद दिला गया। अपनी हद में रहो मलिक, वरना जो मैंने तुम्हें तुम्हारी हद दिखाई तो यकीनन तुम बुरा मान जाओगे। इसके हाथों को खुद से दूर झटकती वो तंजिया मुस्कुराहट से गोया हुई। अब अगर इतनी इज्जत अफजाई काफ़ी हो तो इस अपनी फच्चड़ गाड़ी को लेकर अपनी दोस्त के घर ले जाओ। वो इसकी गाड़ी को देखकर बोली तो बेयर ने हैरत से उसे देखा। गुस्से से पाँव पटकता वो पैदल ही आगे निकल गया। अबे वो पागल हो क्या? इतनी तेज बारिश में इसको यूं सुनसान जंगल की ओर जाता देख वो जोर से बोली, लेकिन वो अनसुनी करता बस सिर्फ आगे बढ़े जा रहा था। अगर उसे मालूम होता कि इसका बेहरा को यूं अकेले छोड़ जाना इसकी जान का अजाब बन जाएगा तो वो मरकर भी इसकी गलती ना करता। तुम हंसो तो खुशी मुझे होती है, तुम रूठ जाओ तो आंखें मेरी रोती हैं, तुम दूर जाओ तो बेचैनी मुझे होती है। महसूस करके देखो, मोहब्बत ऐसी होती है। मामा, आपने जैसे कहा था मैंने आदमी अरेंज करके बेहरा के पीछे भेज दिए हैं और इनको अच्छे से समझा दिया है कि इसके साथ कुछ गलत नहीं करना, बस ऐसा कुछ करना कि लगे इसका रेप हुआ है। सैफी ने शैतानी मुस्कुराहट से मिसेस वरदान से कहा तो इसका थपथपाते उसे खुश रहने की दुआएं देने लगी। जो दूसरों की खुशियाँ छीन लें, क्या इसकी खुशियाँ भी कभी मुझसे नसीब हुई हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? क्या यही तरबियत की है हमने तुम्हारी? वरदान शाह ने इनकी बातें सुनी तो तैश में सेफ्टी को थप्पड़ मारते चीखे। मिसेस वरदान इनको गुस्से में देख डर कर पीछे हुई। तो आपको कहा था ना इसको मेरा कर दें, अब वो हमेशा के लिए ही मेरी हो जाएगी, कोई इसको नहीं अपनाएगा सिवाय मेरे। हा, वो किसी जुनूनी पागलों की तरह बोला। वो कोई चीज़ नहीं है, इंसान है, और नहीं है वो तुम्हारी। जो शख्स सिर्फ मोहब्बत के लिए इसके दामन को दागदार करवाने की कोशिश कर रहा है, उसे पता चला तो वो तुम्हारे मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं करेगी। वो एक थप्पड़ इसको मारते मारते इनको सांस चढ़ गया। वो एक के बाद एक थप्पड़ उसको मारते इनको सांस चढ़ गया। वो सोफे पे ढक गए। वो लाल मुंह से हंसते ही जा रहा था। ये ख्याल ही उसे खुशी से पागल कर रहा था कि इसकी बेरा इसके पास आने वाली है हमेशा के लिए। मिसेस वरदान डर और खौफ से कांपने लगी थी। वो मोहब्बत नहीं है, वो जुनून है मेरा, जिसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो इसके जुनून में इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि गलत सही वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। इसको बस बेहरा अपनी करीब अपनी पनाहों में चाहिए थी किसी भी हाल में। ये बंदा पागल है। वो इसके पीछे जंगल के बीच में पहुंची। वो नजर ना आया तो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती बोली। अचानक वहां से 8 हट्टे कट्टे आदमी आए जो इसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। माल तो मजेदार है, इसको ना चक्का तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई ना होगा। इसकी मार्क्स से छिलकती ग्रे आंखों को देख वो होंठों पे जबान फेरते गलासत बकने लगा। बाकी भी आंखों में हौसले इसकी तरफ बढ़ रहे थे। भाई लोग, लड़ने का मूड नहीं है अपन का, तो कटली मारो इधर से, इससे पहले कि अपन का दिमाग घूमे। वो बाजू चढ़ाती इनसे बोली तो इसमें से एक ने इसके कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे पकड़कर बेरा ने इसको मरोड़ एक झटके से इसका बाजू तोड़ते दूसरे के मुंह पर पाँव मारते वो पहले की गर्दन को एक ही झटके में तोड़ती और दूसरे पर जो नीचे गिरा था इसकी गर्दन पे जंप करती वो तीसरे के पेट में
हील मारी तो वो पेट पकड़कर कराहता नीचे गिरा। चौथे ने फायर करने को गन उठाई। बेड़ा ने इससे गन छीनते तीसरे के सर में गोली मारी। चौथे के सर का निशाना लगाया। पांचवा चाकू लिए आया तो उसने वही चाकू उसे के हाथ को मरोड़ते इसके दिल में घोंपा। बाकी तीन जो 60 नुमा थे उनने पीछे झुकते चाकू उठाया। एक के दिल में चाकू मारते वो दूसरे को शूट करती। तीसरे की गर्दन में टांगे लपेटे झटका दिया तो वो भी बेजान होते गिरा। कहाँ भी था कि मत घुमाओ दिमाग। वो हाथ झाड़ कर मास्क सही करती बोली जो थोड़ी नीचे खिसका था। पीछे से कदमों की आहट सुनी। वो मुड़ी। बॉस यही है वो लड़की। इतने सारे गार्ड्स में से एक ने बुलंद आवाज में कहा। वो एक साथ ही भागते हुए इसकी समत बढ़े। अल्लाह मदद। इस गाड़ी से जंजीर बेल्ट और चाकू निकालते इनको अपनी तरफ आता देखकर कहा। बारिश तेज हुई। वो जैसे ही करीब आए बेरा का हाथ माहिरा अंदाज में घूमने लगा और वो सब खून होते गिरते गए। पीछे से एक ने इसके दिल का निशाना लिया लेकिन बेरा के साइड पे होने से गोली इसके कंधे में लगी। वो दर्द करती एक हाथ से जंजीर चलाते दूसरे हाथ में गन पकड़ी और इस आदमी को शूट किया। जंजीर हाथ से गिरा तो वो गन चाकू जेब से निकालती इन पर चढ़ दौड़ी। इन सब की गर्दन सब दिल में मारते वो आगे बढ़ रही थी। तभी साइड से आदमी जो इसको मारने लगा था उसे शूट किया लेकिन इसका चाकू बेरा के पेट में लगा। वो लखड़ाई। भाई इसके मुंह से सिसकी निकली। इनको अपनी तरफ आता देख वो उठ खड़ी हुई। जंजीर उठाते वो बिना रुके ही इन सब को मौत के घाट उतार रही थी। कोई 10 आदमी ही बचे होंगे तभी एक ने इसके हाथ पर गोली चलाई। जंजीर इसके हाथ से छूटते नीचे गिरा। वो 10 इसको दायरे में लिए एक ने वही जंजीर उठाते इस पे वार करने लगा जिस पे बहरा झुकी और इनके अपने ही 5 आदमी मारे गए। इसने फिर से मारने के लिए हाथ उठाया कि बेरा ने टांग इसकी नाजुक जगह पे मारी। वो दर्द से बुलबुलाता पीछे हटा। चाकू उठाते उसने इन चारों के सरों में मारा। साली बहुत हिम्मत है तुझमें। वो बेरा की टांग पे फायर करते बोला। वो होंठों को भीजते कीचड़ में गिरी। अब बता कहाँ गई हिम्मत। इसकी कमर पे अपना भारी भरकम पाँव मारते तंजिया बोला तो बेरा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। चल इतनी सोनी है तेरे साथ। कमर के दर्द को बर्दाश्त करते वो इसको बातों में देख कीचड़ मुट्ठी में लेती इसकी आंखों में डाला तो गन इसके हाथ से गिरी। जिसे बेरा ने लेटे लेटे ही कैच किया। उठने की हिम्मत ना थी। बंद होती आंखें बामुश्किल वॉक करते इस आखिरी बंदे को शूट किया। गन फेंकते वो वहीं कीचड़ में गिरी। बंद होती गिरे आंखों में अपने भाइयों के चेहरे उभरे और इसका जहन तरीखी में डूब गया। मैं तो सुना था अफरीदी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसके लिए जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। मलिक ने कॉल करते तंजिए कहा तो आलम जो थका हारा सोने लगा था उठ बैठा। तुम्हारी इस बकवास का मतलब? इसके दिल को कुछ हुआ इसके यूं बेरुखी से पूछने पर मलिक हंसा। वीडियो भेजी है देख लेना काम आएगी। वो हंसते हुए बोला और कॉल काट गया। आलम ने जल्दी से वीडियो देखी जिसमें बेरा कई आदमियों से लड़ रही थी। फिर मैसेज आया तुम्हारे भाइयों से रब्ता होना मुश्किल है क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। शट। वो गुस्से से मुक्का बेड पर मारते बोला। उसने याद आते ही सईद को कॉल मिलाई और खुद जैसे बैठा था वैसे ही उठते गार्ड को जेट तैयार करने का कहते वहां से निकला। शान का एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था। अभी साद और शान वापस जाने के लिए जेट में चढ़ने लगे थे कि साद के फ़ोन पे आलम की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? शान के इशारे पे मोबाइल स्पीकर पे कहते खुशी से बोला। वो दोनों जेट में बैठे जल्दी से गुड़िया के पास पहुंचो। वो फार्म हाउस के करीब है। उसे मदद की ज़रूरत है। बाजान या घर में किसी का नंबर नहीं मिल रहा है। मलिक ने वहाँ का नेटवर्क बंद करवा दिया है। मैं भी पहुँचने वाला हूँ लेकिन तुम लोग करीब हो सो गो फास्ट। मोबाइल से उभरने वाली सद आवाज़ पे इन दोनों की धड़कनें बढ़ी। जी भाई बस 10 मिनट। बेरा को खतरे में सुनकर ही इनकी जान सूली पे लटकी थी। शान हल्काते बोला होश में रहो उसको संभालना। कॉल कट हुई तो वो पायलट को उठाते खुद जेट उड़ाने लगे जिसको देख पायलट कम खपाने लगा। सर इतना फास्ट मत। वो अभी कुछ और भी बोलता कि शायद ने सिर्फ आंखों से घूरा तो इसके लफ्ज हल्क में ही दब से गए। घर जाकर भाई कहना डेंजर जल्दी निकलो।
फार्म हाउस में जेट लैंड कर बाहर निकलते वो गार्ड को कहते बाहर को भागे। शान को बाहर बाएं साइड की तरफ इशारा किया और खुद दाएं तरफ भागा। बेहरा, गुड़िया गुड़िया, बेहरा। वो जोर से चिल्लाते हर जगह पागलों की तरफ से ढूंढ रहे थे। हर तरफ फैला कीचड़ और इसमें फैलता इनका खून से लथपथ पड़े आदमियों के बीचों बीच गुड़िया की पुकार पे कीचड़, खून और जख्मों से भरे एक जिस्म में हरकत हुई। हाथ उठे, दर्द से चूर होता बदन वो नीचे गिरी। या अल्लाह मदद! इसके लब फड़फड़ाए। वो आदमियों की लाशों पे हाथ रखती उठने की कोशिश करने लगी। जिस्म में फौस्त गोली भी हरकत हुई। वो दर्द से चीखती गिरी। गुड़िया! इसकी दर्द भरी चीख सुनकर शान और साद के दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़े। खौफ से धड़कते दिल व आवाज की समझ भागे। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंच रहे थे, बारिश के साथ खून की बदबू भी बढ़ती जा रही थी। जंगल के बीचों बीच इनके कदम थमे, जहां हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। क्या इसने अकेले इन सब का खात्मा किया? वहां मौजूद लाशों की तादाद कहीं 500 के करीब थी। अगर इनका ये हाल किया है तो खुद वो कैसी थी, कहाँ थी? भाई, गुड़िया कहाँ है? रात हो गई है, इसकी अभी तक कोई खबर ही नहीं है। डाइनिंग टेबल पे बैठे वो सब बेहरा का इंतजार कर रहे थे। इब्राहिम ने दिल की जगह को मसलते बेचैनी से पूछा। अजीब सी बेचैनी ने इन सब को घेर लिया था। वो कभी यहाँ टहलते, कभी कुछ करते, लेकिन चैन था कि आए नहीं आ रहा था। भाई, मुझे लग रहा है जैसे कोई दिल में चाकू घोंप रहा हो। बहुत दर्द हो रहा है, हरब ने तड़पते हुए कहा। बादल की हालत भी इन सब से मुख्तलिफ ना थी। कहीं गुड़िया को कुछ ऐसी इनकी हालत देखते कहा तो वो सब हमें दिल की धड़कन पल में बढ़ी, जैसे सिग्नल दे रही हो कि वाकई तुम्हारी गुड़िया मौत के मुंह में है। इतने में बाहर से पायलट भागता हुआ अंदर आया। सर, डेंजर डेंजर, जंगल के बीचों बीच डेंजर। इसकी बात सुन इनके हाथ पांव फूले। होश में आते इब्रार बाहर भागा और सब इसके पीछे भागे। रश ड्राइविंग करते वो वहां पहुंचे। आलम, सईद और शान को रोते देख इनके दिल एक बार साख्त हुए। वो इन तक पहुंचे। बेहरा कहाँ? आलम की आवाज पर वो मुड़े। तूफानी बारिश में भी इनकी आंखों में आंसू देख उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। इसके बढ़ते कदम एक बार लिखड़ाए। ढूंढो, वो आफरीदी की बहन है, कोई आम लड़की नहीं है। कुछ नहीं होगा उसे। इनसे ज्यादा तो वो खुद को बावर करवा रहा था कि बेरा ठीक है, इससे कुछ नहीं हुआ। गुड़िया! लाशों पे पाँव रखते वो तीनों उसे पुकार रहे थे। इनकी एक पुकार पे भाग के आने वाली इनकी गुड़िया अब इनके लाख बुलाने पे भी आना तो क्या जवाब भी नहीं दे रही थी। गुड़िया कहाँ हो भाई की जान? सईद रोते हुए धाड़ा। आलम ने इसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। आप क्यों थे यहाँ? एक बच्ची की हिफाजत ना कर पाए? आप लोग अपनी खुशियों में इस कदर पागल हुए कि अपनी फूल सी बहन को भी भूल गए। आलम ने खड़े होते इन सबको सुर्ख अंगारों से घूरते सर्द बर्फीले लहजे में धारते पूछा। आशी डर के मारे गाड़ी में घुसी। गुड़िया कहाँ है? इब्राहिम ने आगे आते पूछा तो शान ने एक मुक्का इसके मुंह पे दे मारा। कमीने तब कहाँ मरे थे जब वो यहाँ मदद की बिना इतने मुस्टंडों से भिड़ गई थी। वो जोर से इनको धकेलते चीखा। ये सुन सबने यहाँ वहाँ देखा। आलम, बताओ कहाँ है बेरा? नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही वो। नहीं, मेरी गलती है, मुझे इसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। शाम ने अपने मुंह पर थप्पड़ मारते चीखा। तो उसको ढूंढो, यही होगी गुड़िया। नौमी ने इन लाशों को देख रोते हुए कहा। वो एक एक लाश पलट कर देखने लगा, लेकिन वो कहीं थी ही नहीं। जाने कहाँ खोने लगी थी इनकी चहेती गुड़िया। जब्त के बावजूद बाजिम और आलम की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। हाँ, मुझसे पंगा लेने की गलती कर बैठे तुम लोग। अब रो, जी भर के रो, तड़पो, मुझे सुकून मिलेगा तुम्हें यूं बिलखते देख। हाँ। वो कहकर लगाते अपने प्लान के कंप्लीट होने पर खुश हो रहा था, ये जाने बगैर कि बहुत जल्द वो रोएगा वो भी, और रुलाने वाले अफरीदी ही होंगे, क्योंकि अफरीदी कभी किसी का एहसान नहीं रखते थे, चाहे फिर वो खुशी हो या गम। हिसाब बराबर करना इनकी फितरत में शामिल था। बेर तो गुस्से से जंगल में घुसा था, फिर हारिस के घर जाते ही कहीं गहरी नींद सो गया था, क्योंकि सुबह मेहंदी थी। उसे लगा बहरा अपने घर जा चुकी होगी।